अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैनिटाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैनिटाइजेशन जो है ये होता क्या है। जब कोविड टाइम था तब मैक्सिमम ऑफ द पेशेंट्स या मैक्सिमम ऑफ द पीपल सैनिटाइजेशन से बखूबी वाकिफ थे कि सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजेशन कर ली है, क्या ये चीज़ सैनिटाइज है, इसको यूज़ करेंगे तो क्या ये सैनिटाइज किया हुआ है। सैनिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल और मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे किसी भी एरिया को। ये एप्लीकेबल होता है उन एरियाज में जहाँ पे पब्लिक हेल्थ का इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सैनिटाइजेशन। Sanitization is done by the help of chemicals or mechanicals. Usually, it is used by food industries. It reduces microbes on eating utensils to safe, acceptable levels for public health. फॉर एग्जाम्पल हम एक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक जिसका नाम है सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन में हम एक चीज को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज कैसे करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एनी केमिकल एजेंट। या आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे घर में हम बर्तन धोते हैं तो फिर कहा जाता है कि इन बर्तनों को कुछ देर के लिए धूप में रख लो। वो धूप जो होती है दैट इज अ टाइप ऑफ सैनिटाइजेशन। जो पानी उस पर रखा गया होगा वो एब्जॉर्ब होगा, अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होगी वो माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज सैनिटाइजेशन, बट दैट सैनिटाइजेशन इज फिजिकल सैनिटाइजेशन। But when we are going for the sanitization through a chemical agent, that is chemically we are using some alcohol products like isopropyl alcohol, we are going to sanitize the hands। ठीक है, तो सैनिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल एजेंट और मैकेनिकल क्लींजिंग करते हैं, या तो केमिकली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स या विद द हेल्प ऑफ एनी मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिकल क्लींजिंग करते हैं, जो एप्लीकेबल होती है पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में। Usually used by food industries to reduce microbes on eating utensils to save acceptable levels for public health। फॉर एग्जाम्पल लोगों के हेल्थ को कंसिडर करके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस करेंगे ताकि जो पेशेंट या जो भी कस्टमर उस एरिया में जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, वहां पे जो यूटेंसिल्स यूज की गई हो उन यूटेंसिल्स में माइक्रोबियल ग्रोथ टू द मिनिमम होगा। So the first point is sanitization. Sanitization is a process in which a chemical or mechanical cleansing is done. It is basically used in public health areas where public interactions are much, like restaurants. What does sanitization do in restaurants? In restaurants, we do reduce the microbial growth on the utensils that are used to serve the dishes, used to serve the food। Okay, so इसमें हम reduce कर लेते हैं at an acceptable level। We couldn't kill all the microorganisms including the spores, but we reduce the number। When we reduce the number of a microbial growth over a specific region, that type of process is called as sanitization। So next point is asepsis। Basically, asepsis is comprised of two words. A means without and sepsis means infection। So the point is clear. A means without and sepsis means infection. So it is a method in which we are reducing the chances of infection inside any environment in which we are working. Like if we are working in operation theater, what we use gloves, mask, headgears, gown, shoe cover, all the other equipments. Like during the COVID-19, we were using PPE kits, personal protective equipment kits. What does that help? That helps us to prevent from the diseases that are already present in the environment, or some patient who is having a COVID positive, so that we can prevent ourselves from any disease. That is prevention of infections. A means without and sepsis means infection. It is the employment of techniques. Some of the techniques we are using, such as usage of gloves, usage of air filters. What does air filters do? Air filters also plays an important role in prevention of infections. What does air filters do? As in the first lecture, we have discussed that filtration do reduce microorganisms, but they does not kill microorganisms. What will happen in the filter if the microorganism who is size is 2 micron, till 2 micron it will pass through the membrane, but after 2.5 microns they will not pass, so the reduction of the microorganism will occur. UV radiations, they also help in protein denaturation, oxidative damage, etc.
to achieve microfree environment. What we will gain after the asepsis is a technique in which we are reducing the infections in a specific area. सो उससे क्या होगा, जब हम एक एरिया में कोशिश करेंगे कि वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, उस माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करने से क्या होगा, जो भी एनवायरनमेंट होगा वो इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा। कैसे करेंगे हम ग्लव्स का यूज करेंगे। अगर हम ग्लव्स का यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट का पस है, उस पस को हमने निकाल लिया है, उस पस में डेड सेल्स है, इंक्लूडिंग दैट डेड सेल्स देयर आर नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट पस। सो अगर हम बेयर हैंडेड से हमने वो पस निकाल लिया है, तो जो इन्फेक्शंस उसमें थे वो हमारे स्किन पे आ गए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी यूज ग्लव्स। ग्लव्स से क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन होगा वो ग्लव्स में रहेगा और ग्लव्स को हम बाहर डिस्कार्ड कर सकते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीट वी विल डिस्कार्ड द ग्लव्स। इसी तरह होता है एयर फिल्टर। व्हाट डज एयर फिल्टर डू? एयर फिल्टर passes the air free from microbes. Another thing is ultraviolet radiations. What ultraviolet radiations do? Ultraviolet radiations we will discuss in next chapter, that is ionizing and non-ionizing radiations, in which ultraviolet A, ultraviolet B radiations are present. They actually denaturate the DNA. They do oxidative damage, protein denaturation. Okay, they disbalance the free radicals of the cells. By what will happen after the asepsis, we will achieve a microfree environment. The environment in which we are working, or the environment that we are doing to make aseptic, that is achieved only by the process of asepsis, by employing the techniques such as using of gloves and air filters and ultraviolet radiations. So the next is antisepsis. Now asepsis is using of techniques. Now, antisepsis is using of chemicals, antiseptics, to make skin or mucous membranes devoid of pathogenic microorganisms. As we have discussed in the first lecture, disinfectant. Disinfectant वो एक केमिकल एजेंट होता है जिसमें हम माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं एक इनएमिनेट ऑब्जेक्ट पे। इनएमिनेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो एक ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ ना हो, लाइक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। टेबल को हम डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। उस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम डिसइंफेक्टेंट को हमारी बॉडी पे यूज करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी उतने टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं, उतने कंसंट्रेशन को टॉलरेट नहीं करेंगी, तो हमारी बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में रैशेस हो जाएंगे एंड दैट कैन लीड टू डैमेज ऑफ द टिश्यू, डैमेज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी या रेंज, target range of any disinfectant is more as compared to the antiseptic, because antiseptic solutions are basically designed, manufactured to reduce the microbial growth or infection in skin and mucous membranes. म्यूकस मेम्ब्रेन कौन कौन सा होता है? वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जहां पे म्यूकस रिलीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल माउथ, ईसोफेगस, इसमें सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है जो म्यूकोसल लेयर, जो जिसमें म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होता है। अगर अब हम एंटीसेप्टिक किसी को बोलेंगे कि इसको निगल लो आपका, या किसी को हम दे देंगे एंटीसेप्टिक लाइक लाइजॉल, उसको बोलेंगे कि आप इससे बेटाडीन, आप इससे लाइजॉल से गार्गल्स करो, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगा वो सारा डैमेज हो जाएगा, उसमें अल्सरेशंस हो जाएंगे। इसी तरह से हम किसी पेशेंट को बोलते हैं, अगर इन केस शी और ही इज हैविंग इश्यूज इन माउथ म्यूकोसल लेयर, हम उसे कहते हैं आप बिटाडीन गार्गल्स करो। लेकिन बिटाडीन की कंसंट्रेशन होती है 2.5%, नॉट 10% दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग हैंड वॉशिंग टेक्निक। इसी तरह से होता है द यूज ऑफ केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक्स के लिए, उनको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। अगर हम एंटीसेप्सिस के लिए कोई केमिकल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। इसी तरह से अगर हम कोई केमिकल यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उनको हम कहते हैं केमिस्टेरिलेंट्स। ये दो चीजें याद रख लेना, ठीक है। और जो डिसइंफेक्शन के लिए हम एजेंट्स यूज करते हैं उनको हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। इसी तरह से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो एंटीसेप्सिस के लिए यूज होता है। द यूज ऑफ केमिकल्स आल्सो कॉल्ड एज एंटीसेप्टिक्स टू टू मेक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स डिवाइड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काजिंग एजेंट्स होंगे उनको हम फ्री करेंगे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करेंगे, दैट इज एंटीसेप्सिस। द अनदर टॉपिक इज बैक्टीरियोसिटासिस। बैक्टीरियो एंड सिटासिस, दीज आर टू वर्ड्स। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड सिटासिस मीन्स टू stop. It is a condition where the multiplication of the bacteria is inhibited without killing them. For example, we have two bacteria, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ये बनाएंगे 20 बैक्टीरिया। इसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू हो जाएगा, ये 2000 से 2
20,000 इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। बैक्टीरियोसिटासिस में क्या होता है, अगर ये 20 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आफ्टर बैक्टीरियोसिटासिस दिस विल रिमेन ओनली 20, द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिफोर एंड आफ्टर रिमेन इज द सेम। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप। जब मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी तो जो हमारा पहले का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो उधर का उधर ही रहेगा, उतना ही था। इसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बार ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अब वो मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो वहां पे एनॉर्मस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। हम वो क्या करते हैं वहां पे, हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट देते हैं वहां पे, वो क्या करता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे है उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करेगा, और ग्रोथ रिड्यूस करने के साथ साथ वहां पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल डिक्रीज, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल रिमेन द सेम। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो जितना होगा पहले प्रेजेंट उतना ही रहेगा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं। बैक्टीरियोसिटासिस में हम ओनली सिटेसिस कर लेते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरियोसिटासिस इट इज ए केमिकल एजेंट दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस और दैट इज यूज्ड टू prevent the bacteria from multiplication, inhibit without, and what will happen, the bacterial growth will reduce but without killing the bacteria, हम बैक्टीरिया को इसमें किल नहीं करते हैं। another thing is bactericidal, बैक्टीरिसाइडल इज ए केमिकल एजेंट दैट किल और इनएक्टिवेट बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट मीन्स या तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा, अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन है वो फंक्शन नहीं करेगा। सच केमिकल्स मे बी कॉल्ड वेरियसली डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये जो बैक्टीरिसाइडल होता है ये डिपेंड करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पे। इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी रेंज कितना है, ये अपना कितने एरिया में ये अपना इफेक्ट दिखाता है। लाइक बैक्टीरिसाइडल होता है वो जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करेंगे, केमिकल एजेंट दैट इज यूज्ड टू किल और इनएक्टिवेट द बैक्टीरिया, सच केमिकल्स मे बी कॉल्ड वेरियसली। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो हम डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियासाइडल सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेगा, अब वहां पे फंगाई प्रेजेंट होगा, ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट होगा, या जर्म्स प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उनके लिए जो बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स होते हैं उनको हम अगर बैक्टीरिया को किल करेंगे तो उनको हम कहते हैं बैक्टीरियासाइडल, जो वायरसेस को किल करेंगे उनको हम कहते हैं वायरसाइडल, जो फंगस को किल करेगा उनको हम कहते हैं फंजिसाइडल, जो माइक्रोब्स को किल करे उनको हम कहते हैं माइक्रोबिसाइडल, जो सुपोर्स को किल करेगा उनको हम कहते हैं सुपोरिसाइडल, जो ट्यूबरकुलोसाइडल है जो ट्यूबरकुलोसिस करता है, कौन है वो, कौन सा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस को, जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, कौन सा बैक्टीरिया है जिससे ट्यूबरकुलोसिस, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो उसमें है जर्मिसाइडल जो जर्म्स को किल कर सकता है। ठीक है, now the point is antibiotics, we have discussed it, we will go back to a recapitulation करेंगे हम। सैनिटाइजेशन केमिकल प्रोसेस, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो एप्लीकेबल होती है पब्लिक हेल्थ एरियाज में, जिसमें हम यूटेंसिल्स को या अदर प्रोडक्ट्स को माइक्रो फ्री करते हैं, ताकि जो भी हम फूड या कोई भी मटेरियल उसमें सर्व करेंगे वो बैक्टीरियल फ्री होगा। एसेप्सिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम यूजेज ऑफ ग्लव्स वगैरह करते हैं टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन और टू रिड्यूस द टोटल इन्फेक्शन इन दैट एनवायरनमेंट। एंटीसेप्सिस वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो हम स्किन पे यूज कर लेते हैं। यूज ऑफ केमिकल एंटीसेप्टिक्स टू मेक स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स डिवाइड ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स इनका काम सेम है, डिसइंफेक्ट इनएमिनेट ऑब्जेक्ट पे होता है, एंटीसेप्टिक लिविंग ऑब्जेक्ट पे होता है। बैक्टीरियोस्टैसिस वो एक मेथड है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बैक्टीरिसाइडल क्या है, बैक्टीरिसाइडल एक केमिकल है जिसे हम किल करते हैं या इनएक्टिवेट करते हैं बैक्टीरिया को। किल मतलब डेड करेंगे, इनएक्टिवेट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इनहिबिट करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन इन्फेक्शन उसको हम इनएक्टिवेट करेंगे। सच केमिकल्स में कॉल्ड वेरियसली डिपेंडिंग अपॉन देयर टारगेट रेंज और डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, दे आर डिवाइडेड एज बैक्टीरियासाइडल विच किल्स द बैक्टीरिया,
वायरोसाइडल विच किल्स द वायरसेस, फंगिसाइडल जो फंगस को किल करेगा, माइक्रोबिसाइडल जो माइक्रोब्स को किल करेगा, सुपोरिसाइडल जो सुपोर्स को किल करेगा, ट्यूबरकुलोसाइडल वो एक बैक्टीरिया है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होती है। वो आप कमेंट में लिखोगे कौन सा बैक्टीरिया है वो। उसके बाद है जर्मिसाइडल जो जर्म्स को किल करेगा। नाउ द टॉपिक इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप लोगों ने तो ले लिए होंगे एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हमारी बॉडी में जो जर्म्स वगैरह बन गए हैं, जो इन्फेक्शन काजिंग एजेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ हम जो ड्रग लेते हैं उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक माइक्रोब से, या तो वो इनहिबिट करेंगे अनदर माइक्रोब की फंक्शन, या तो उसको किल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में एक माइक्रोब ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसने हमें प्रॉब्लम की है, हमें फीवर हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो हम एंटीबायोटिक में एक माइक्रोब डाल देते हैं जो इनहिबिट करेगा उसकी फंक्शन को, या तो सीधे ही उसको किल करेगा। ऑफन टर्म इज यूज्ड मोर जनरली टू इंक्लूड सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। There are number of microbial agents. ये there are number of antibiotics. Some of them are semi-synthetic and some of them are synthetic. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोब। एक माइक्रोब से कुछ सबस्टेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो इनहिबिट करते हैं या किल करते हैं अनदर माइक्रोब को जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बने गए हैं। सम ऑफ देम आर सिंथेटिक एंड सम ऑफ देम आर सेमी सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। तो द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ये है हमारा बेसिक टॉपिक। वो कुछ बेसिक आइडियाज थे जो हमें इसमें यूज हो जाएंगे। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन में सबसे पहले आता है फिजिकल मेथड, उसके बाद केमिकल मेथड और फिजियोकेमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आता है सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन। सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन और रेडिएशन। रेडिएशन के साथ साथ आता है फिल्ट्रेशन। हीट में आता है ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन एंड इंफ्रारेड। मॉइस्ट हीट में आता है बिलो 100 डिग्री, एट 100 डिग्री एंड अबो 100 डिग्री, आल्सो कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकुलेट। इसमें हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ लाइट। इसमें है फिल्ट्रेशन में अर्दनवेयर, एस्बेस्टोस फिल्टर, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। लिक्विड्स में आता है अल्कोहल्स, आल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, हेलोजन्स, हेवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स एंड डाइस। गैसेस में आता है फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा। फिजियोकेमिकल्स में आता है प्लाज्मा, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो हम प्लाज्मा कैसे जनरेट कर लेते हैं। तो फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, द फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज सनलाइट। सनलाइट में दो चीजें होती है। सनलाइट में बेसिकली दो चीजें होती है। सनलाइट में एक होता है हीट और दूसरा क्या होता है यूवी रेडिएशंस। ये हमें हेल्प करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करने में। हीट से क्या होती है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स, और यूवी रेडिएशंस करता है डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा जब हमारे घर में कभी कभी बिस्तर को बहुत टाइम होता था, जो शीट वगैरह डाले हुए होते हैं, तो कहते हैं कि चलो इनको धूप में रख दो। धूप में रखने से क्या हो जाता था, वो जो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होती थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती थी। The microbial activity of the sunlight is mainly due to the presence of ultraviolet rays, due to the presence of ultraviolet rays and ultraviolet rays in it. It is responsible for spontaneous sterilization, for time consuming in natural conditions. In tropical countries, जिनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, the sunlight is more effective in killing germs due to the combination of ultraviolet rays and heat by protein denaturation and coagulation of proteins. By killing bacteria suspended in water, sunlight provides natural method of disinfection of water bodies such as tanks, lakes. Sunlight is not supericidal, hence it does not sterilize. क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट है सनलाइट माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी है इसकी। दैट मीन्स माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी, अभी हमने देखा है कि ये माइक्रोब्स को किल करेगा। इसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है, या हाँ रेंज ऑफ एक्टिविटी है, वो माइक्रोबिसाइडल है। दैट मीन्स इट विल किल माइक्रोब्स ओनली। सो आफ्टर दैट सनलाइट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट होते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मीन्स इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
बट इसमें एक ड्रॉबैक है, इन केस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑकर्स इन बिटवीन द सनलाइट विल नॉट पेनिट्रेट थ्रू दैट ऑब्जेक्ट. So behind the object, if any microbe is there, that what will happen? The microbe will not get sterilized, or the microbe will not get killed. In tropical countries, the sunlight is more effective in killing germs due to the combination of ultraviolet rays and heat. अल्ट्रावायलेट रेज और हीट, इनकी एक प्रॉपर्टीज है जो हम आगे जाके देखेंगे. ये प्रोटीन डिनेचुरेशन कैसे करते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे करते हैं, डीएनए डिस्रप्शन कैसे करते हैं, सेल्यूलर लेवल पे ये कैसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये कैसे डैमेज करते हैं, और माइक्रोब्स की डेथ कैसे हो जाती है. बाय किलिंग बैक्टीरिया सस्पेंडेड इन वाटर, सनलाइट प्रोवाइड्स नेचुरल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बॉडी सच एज टैंक्स, लेक्स. सनलाइट जो है ये सुपोरिसाइडल नहीं है, तो ये स्टरलाइज नहीं करेगी. दैट इज फाइनल. नाउ हीट. हीट इज कंसिडर्ड टू बी द रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एक होता है जो इजीली अवेलेबल होगा, नॉन कॉस्टली होगी. लेकिन ये एक चीज है, ये उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को कर सकते हैं जो हीट को विदस्टैंड कर सकते हैं. अगर हमने एंडोट्रेकल ट्यूब को रख दिया है गर्मी में तो वो मोल्ड हो जाएगा, उसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी. इसीलिए हीट में वही इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं जो हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, जो हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं. हीट एक्ट्स बाय ऑक्सीडेटिव डैमेज. ऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स क्या होता है, हमारे सेल्यूलर लेवल में कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को ये इम्बैलेंस करता है. उसकी वजह से जो सेल्यूलर लेवल है, वो सेल्यूलर लेवल, जो सेल्यूलर ऑर्गेनेलीज है वो डैमेज हो जाते हैं. एज वेल एज डिनेचुरेशन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन. एक तो प्रोटीन डिनेचुरेशन हो जाएगी और कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी. जब कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगी तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी टू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज दैट विल शट. जब वो बंद हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ ऑलरेडी हो जाएगी. Those articles that cannot withstand high temperature can still be sterilized at low temperature by prolonged period of time. अगर हीट है, हीट में जो इंस्ट्रूमेंट हम स्टरलाइज कर सकते हैं वो करेंगे, बट अगर हमें अब कोई प्लास्टिक या कोई इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करना है जो हीट को स्टैंड नहीं कर सकता है, तो हम उसको कर सकते हैं, बट लो हीट पे ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. उसमें हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा. So in next lecture, we will discuss factors affecting factors affecting sterilization by heat. तो अगर आपको ये पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा सजेशंस देना, व्हाट शुड आई नीड टू मॉडिफाई, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम. तो मॉडिफिकेशन इज मस्ट सो दैट आई कैन गिव द बेस्ट to benefit the people over there. Thank you so much.